चलिए सीधे आपको अब पंजाब लिए चलते हैं, जहां पंजाब के लुधियाना में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर इंटरेक्टिव सत्र का आयोजन किया। आईएएस प्रमुख सचिव सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आएं और हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। और मैं रिक्वेस्ट करती हूं सर कि आप हमारे विशिष्ट अतिथियों का भी स्वागत करें। आज हमारे साथ मौजूद है श्री लोकेश जैन, चेयरमैन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री लुधियाना, मैनेजिंग डायरेक्टर टीके स्टील। और हमारे साथ मौजूद है श्री संजीव पावा, मैनेजिंग डायरेक्टर रॉल्सन ग्रुप, श्रीमती सुचिता ओसवाल जैन, वाइस चेयरमैन वर्धमान ग्रुप, श्री राजेंद्र गुप्ता, चेयरमैन ट्राइडेंट ग्रुप, श्री नीरज मंडलोई, एसीएस मुख्यमंत्री कार्यालय, श्री संजीव कालवा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक फास्टनर्स, श्री दिनेश ओसवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर नाहा ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री एससी रल्हान, अध्यक्ष FIEO, एंड श्री चंद्रमौली शुक्ला जी, MD MEIDC। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं स्वागत भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री लोकेश जैन, चेयरमैन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री लुधियाना, मैनेजिंग डायरेक्टर टीके स्टील। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। अरे यार भाई साहब पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। Friends, you know, it's not every day that you see the chief minister of a prominent industrial state traveling out of the state, not for politics, not for press, but to meet industrialists face to face. Won't you say that says a lot about intent? Good afternoon, everyone. It is my privilege and honor to warmly welcome the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav, and the Principal Secretary, DIPIP and MSME, Mr. Raghavendra Singh. Sir, your presence today underscores your unwavering commitment to fostering a vibrant industrial ecosystem and connecting directly with industry stakeholders. The event today reflects commitment, clarity of purpose, and a deep respect for industry. For that, sir, we are deeply honored. I welcome the esteemed delegation from Madhya Pradesh and all dignitaries on this dais. I also want to extend a very special welcome to everyone in this room, the stalwarts of our Ludhiana industry, who built India with steel, sweat, and silent resolve, and the next generation of entrepreneurs who come armed with ambition, ideas, and laptops. Friends, we are all a part of the same mission, turning ambition into action and action into national transformation. As chairman of CII Ludhiana and a proud representative of Punjab's entrepreneurial spirit, I must also share that I stand here not only as a voice of the Ludhiana industry, but also as an investor in Madhya Pradesh. Our company has invested in solar power generation in the state of MP, and we have personally witnessed the transformation that has come in the state in the last few years. Friends, Madhya Pradesh has undergone a silent revolution with infrastructure, governance, policies, all aligned with one vision: industrial growth with national purpose. This transformation is not by chance, but the result of a clear visionary leadership, and that vision is led by the Honorable Chief Minister himself. For truly inclusive growth, the government of Madhya Pradesh has demonstrated a unique approach.
evident from the successful organization of various regional industry summits across the state. And not only that, what's truly inspiring is that the investment outreach is not confined to India. It spans international platforms, reflecting a forward-looking and a global vision. CII, the Confederation of Indian Industries, has been proud partner with the government of Madhya Pradesh in this journey, and we look forward to taking this collaboration to the next level. On behalf of CII and the entire industrial community here, I extend our deep gratitude to the Honorable Chief Minister and the government delegation for taking the time to engage with us. To all my fellow industrialists, friends, today, just don't listen. Engage yourself, raise questions, raise your awareness. We are all working towards a common goal, that is to transform India. And we are all our partners in that. So today, engage, ask questions, and think Madhya Pradesh. Thank you once again to the delegation. We wish you success and look forward to many meaningful partnerships ahead. Thank you. धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन हमें यहाँ पर देंगे श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन एवं MSME विभाग मध्य प्रदेश सरकार। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में निवेश की अनंत संभावनाओं पर अब हम एक फिल्म भी देखेंगे। सो आप सबसे आग्रह है कि आप स्क्रीन की तरफ अपना ध्यान लगाएं और इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को। धन्यवाद। If you seek a land wherein finite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and has many as 11 agro-climatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first global skills park, IIT, IIM, NIT, NIFT, MANET and many prestigious institutions near you, access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by world heritage sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies, creating an ecosystem for the next industrial revolution. When you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India, where tradition meets innovation and opportunities are ever expanding. The state is building the foundation of a Viksit Madhya Pradesh and contributing actively to the vision of a Viksit Bharat. Come to Madhya Pradesh, the land of infinite possibilities. वंदे मातरम अनंत संभावनाओं से भरा हुआ
हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश। Friends, India is one of the fastest growing economies in entire world, and you will be amazed and surprised to know that Madhya Pradesh has been one of the fastest growing state economies in India. तो ऐसे प्रदेश में जहाँ पे विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प लिए हुए हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके बारे में मैं केवल एक ही चीज को कहता हूं, उनका एक ही सूत्र वाक्य है, न थकना है न रुकना है। और आपको यह जान के सुखद आश्चर्य होगा। एंड while discussing today, we found that many people are amazed that how can achieve this take an entire day of his time just to meet industrialists and just to go to their places। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी पे एक नंबर पे प्रथम विषय सारे चीज़ों के साथ अगर है तो इंडस्ट्री है, और उस डिपार्टमेंट के ऑनरेबल मिनिस्टर भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हैं। तो इससे सारी सीरियसनेस आ जाती है। आज के कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित मैडम सुचिता ओसवाल जैन, वाइस चेयरमैन वर्धमान ग्रुप, श्री राजेंद्र गुप्ता जी, चेयरमैन ट्राइडेंट ग्रुप, श्री दिनेश ओसवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर नाहर ग्रुप ऑफ कंपनी, श्री संजीव पाहवा जी, चेयरमैन रालसन ग्रुप, श्री संजीव काला जी, मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक फास्टनर, श्री लोकेश जैन जी, चेयरमैन CII लुधियाना चैप्टर, उपकार सिंह आहूजा जी, CITU यहाँ लुधियाना से, श्री SC ललन साहब, अध्यक्ष PO, श्री नीरज मनोहर साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री कार्यालय और ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन। तो आई विल ट्राई टू have a very short presentation. So Madhya Pradesh is essentially located, as the name itself suggests, or the kind of connectivity and kind of road network that we have created is second to none. We have north-south corridor, we have east-west corridor, we have Delhi-Mumbai expressway, Agra-Bombay road, Delhi-MIC, Delhi-Mumbai investment corridor is also there. There are major railway lines. And the kind of infrastructure Madhya Pradesh has created, we have created more than 5 lakh kilometer good, all-weather, very fine, fantastic roads. मध्य प्रदेश में जो दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगा कि the land availability and that too at a very cheap cost। हमारे पास 1 लाख एकड़ से ज़्यादा का लैंड बैंक है, हमारे पास 340 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं। एंड इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम कोलेब्रेशन में बहुत सारे पार्क्स कर रहे हैं, बिकॉज वी आर वन ऑफ दोज स्टेट्स जहाँ पे whenever there is a kind of priority from government of India, so we are always the first ones जो हम ये ऑफर करते हैं कि the kind of facility we will provide to investors। तो उसकी वजह से हमें मेडिकल डिवाइसेस पार्क मिला है विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में, PM मित्रा पार्क हमें मिला है धार में, इंदौर के पास में, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बाबई मुहासा में, which has become सर्कल सक्सेस, मतलब जिस तरह से हमने उस पर काम किया है। लेदर फुटवेयर और एक्सेसरीज का पार्क हमारा मुरैना में है, प्लास्टिक पार्क ये हमारा मध्य प्रदेश में, और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी संभव है। द काइंड ऑफ सपोर्ट, द काइंड ऑफ कोलैबोरेशन वी हैव विद सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज फिनोमिनल। मैं मध्य प्रदेश के बारे में कहना चाहूँगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने मध्य प्रदेश में इस बार उनके कदमों से मध्य प्रदेश की 18 प्रो बिजनेस मल्टी इंडस्ट्री पॉलिसीज 18 नई लागू की हैं 2025 में फरवरी में। और ये जो 18 पॉलिसीज हैं, आप ये देखेंगे कि ये डिफरेंट सेक्टर्स को टच करती हैं। Not only that, they are very updated, very modern, but there has been some out of the world thoughts also in these policies। और इन पॉलिसीज में आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट की पॉलिसी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन मध्य प्रदेश। लॉजिस्टिक के लिए हमारी एक सेपरेट पॉलिसी है,
आप देखेंगे कि AVGC वगैरह के ऊपर हमारी ऑडियो विजुअल सिस्टम, उसके ऊपर नई पॉलिसी है। सेमीकंडक्टर के ऊपर हमारी नई पॉलिसी है। सिविल एविएशन के ऊपर पॉलिसी है। फिल्म में फिल्म टूरिज्म के ऊपर पॉलिसी है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पॉलिसी है। ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ जो दिल चाहे वो मध्य प्रदेश की टैगलाइन के बारे में विज्ञापन की है। इन सारे सेक्टर्स में हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी बनाते समय स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन, उनका फीडबैक और व्हाट वी हैव ट्राइड की हमारी पॉलिसी वन ऑफ द बेस्ट है। बहुत बार ऐसा लगता है कि हम जब बड़े उद्योगों की बात करते हैं तो छोटे उद्योगों के बारे में सोचते कम है, लेकिन मैं यहाँ पे मन से खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश की MSME की पॉलिसी, मध्य प्रदेश की स्टार्टअप की पॉलिसी पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी होगी जो कि स्टार्टअप को और MSME को सपोर्ट करती होगी। इसके बाद अगर मैं मध्य प्रदेश के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत ही डाइवर्स सेक्टोरल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे आप डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहें, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहें, सोलर पावर जनरेशन के फील्ड में जाना चाहें, फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में जाना चाहें, ऑटोमोबाइल के फील्ड में जाना चाहें, केमिकल फर्टिलाइजर्स के फील्ड में जाना चाहें, फिर उसके बाद से फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में जाना चाहें, तो जो काइंड ऑफ डाइवर्सिटी मध्य प्रदेश गिव्स टू इंटायर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम is unparalleled. No other state can launch for it. मध्य प्रदेश की जो मैंने GSDP ग्रोथ रेट की बात मैंने की है, तो 2012 से 2023 के बीच में मध्य प्रदेश वन ऑफ दोज प्रोग्रेसिव स्टेट्स जिनकी बड़े राज्यों में, मेरे ख्याल से एक सिक्किम को शायद छोड़ दूँ तो बड़े सारे राज्यों में मध्य प्रदेश की GSDP की ग्रोथ रेट सर्वाधिक रही है। उसको नॉमिनल GDP के टर्म्स में देखें, रियल GDP के टर्म्स में देखें, इन्फ्लेशन को उसके साथ जोड़ के घटा के जैसे भी देखना हो। मध्य प्रदेश में तो हमारे जो सर्विसेज हैं, गैस पाइपलाइन वगैरह की सर्विसेज हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें लैंड, पावर, इंसेंटिव और इन सब के बीच में जो मध्य प्रदेश के लिए मैं कहना चाहूँगा, जिसके बारे में आगे डिस्क्राइब भी करूँगा, कि मध्य प्रदेश हैज़ ऑलवेज बीन एन आइलैंड ऑफ पीस। शांति का मध्य प्रदेश एक टापू रहा है। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा, और जैसा अभी आपने एक पिछली AB में देखा कि हमारे पास बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट्स हैं और इसके मैन पावर है। मध्य प्रदेश की डिटेल पॉलिसी के डिटेल्स में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आप इस प्रेजेंटेशन की कॉपी आप सब लोगों को मिलेगी, और बाकी हमारे नेट पर भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस 40% तक है आपकी प्लांट मशीनरी के ऊपर एक्सपेंडिचर का, और जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस पे आपको डिफरेंट मल्टीप्लायर्स मिलते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मल्टीप्लायर आपको 1.5 का मिल सकता है, एक्सपोर्ट का मल्टीप्लायर आपको 1.3 का मिल सकता है। आप मध्य प्रदेश के नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया, जिनको हम प्रायोरिटी एरिया कहते हैं, उस रीजन में अगर अपने को लोकेट करेंगे तो 1.3 का मल्टीप्लायर मिल सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपका 51% से ज्यादा है तो 1.2 का मल्टीप्लायर मिल सकता है, और 51% और 25% के बीच में है तो 1.1 का मिल सकता है। हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर सपोर्ट देते हैं। हम एक्सपोर्ट की जैसा फ्रेट की सब्सिडी है उसको देते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर अलग से पॉलिसी ही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज ऑलवेज बीन अ की फैक्टर फॉर एनी कंट्रीज डेवलपमेंट। इस बात का इल्म हमें है, और इसके लिए हम लोगों ने 25% तक के एक्सपेंडिचर का 25% जो व्यय होगा उसका सपोर्ट की हमने बात की, जो 25 करोड़ तक हो सकता है वो सपोर्ट हम दे सकते हैं। और इंडस्ट्रियल हाउसिंग जो वर्कर्स के लिए है उसके लिए हम वाइबिलिटी गैप फंडिंग की भी हम आपको सपोर्ट दे सकते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्लाइड है, तो इस स्लाइड को हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तो हमें समझ में नहीं आया कि हम पंजाब के थ्रस्ट एरिया की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के थ्रस्ट एरिया की बात कर रहे हैं। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वट एवर दैट हैज बीन रिटन हियर, वो पंजाब के भी थ्रस्ट एरिया हो सकते हैं और मध्य प्रदेश के भी थ्रस्ट एरिया हो सकते हैं। और इन सारे सेक्टर्स में मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश का अपना इकोसिस्टम है, मध्य प्रदेश की अपनी पॉलिसी सपोर्ट्स हैं। मध्य प्रदेश इन सारे सेक्टर्स को और प्रमोट करने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर भी मेहनत करना चाह रहा है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इन सारे सेक्टर्स के ऊपर जरूर नजर डालें। फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, गारमेंट एक्सेसरीज फुटवेयर के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग के ऊपर। तो ये सारे सेक्टर्स मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश और पंजाब दोनों के लिए कॉमन है। मैं
क्योंकि आज यहाँ हमारे IT सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर से अधिकारीगण यहाँ पे नहीं है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश is doing well in ITS sectors, TCS, Infosys, बड़ी कंपनियां वहाँ पे हैं, IT के SEZs हैं, IT पार्क्स हैं, 50 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां हैं, 2 यूनिकॉर्न, 1200 से ज़्यादा टेक्निकल स्टार्टअप्स हैं, और जो ये कहते हैं कि एक नॉट ओनली दैट द पॉलिसी सपोर्ट, या हम आपको ITS के फील्ड में 30-40% का आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसका सपोर्ट देते हैं, और उसके साथ भी जो एक राइट टू लिव अ गुड लाइफ या राइट एक अच्छी लाइवलीहुड, एक अपना बिजनेस भी चले और वहाँ पे अच्छी जिंदगी भी रहे, तो उसके लिए मध्य प्रदेश हैज बीन वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट इन इंडिया। इंदौर ने अपना लगातार 7 बार जीत कर परचम लहराया है। भोपाल हमारी देश भर की सबसे स्वच्छ और खूबसूरत राजधानी है। टूरिज्म के सेक्टर में देखें तो कुछ आपको ऑडियो विजुअल में दिखा होगा, 14 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 2 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश चीता स्टेट है, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश एलिगेटर्स उनके लिए भी, घड़ियाल के लिए भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को इन सब खूबियों की वजह से हमारा करीब 1/3 एरिया फॉरेस्ट कवर है। पूरे देश भर का एक तरह से समझे कि 12 से 14% मतलब 7वां हिस्सा जो फॉरेस्ट का है वो मध्य प्रदेश का है। तो जो कुछ भी ग्रीनरी, वॉट एवर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन इंटायर इंडियन इकोसिस्टम और इकोलॉजी में पूरा मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारी फिल्म टूरिज्म की पॉलिसी और उन वजहों से वहाँ पे हमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का भी और बहुत सारी फिल्मों और सीरियल्स का मध्य प्रदेश में निर्माण हो रहा है। कुछ ये 2 चीज़ों के ऊपर मैं आपका ध्यान दोबारा एक बार आकृष्ट कर रहा हूँ, पीएम मित्रा पार्क का घाट का और मेगा लेदर पार्क मुरैना का, ये दोनों एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। इसमें हमारी गुजारिश है कि आपकी नज़र हमारे ऊपर जरूर पड़े, और आप देख सकते हैं कि जो पावर की कास्ट पीएम मित्रा पार्क में 4.5 रुपये प्रति यूनिट की है, वाटर 25 रुपये प्रति 1000 लीटर की है, और एक इंटीग्रेटेड यूटिलिटी रेडी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ क्रिएट करेंगे। इसी तरह से मेरा लेदर फुटवेयर पार्क में भी आप देखें रेंट्स वगैरह बहुत कम है, पावर की कास्ट बहुत कम है और वाटर की कास्ट कम है। मध्य प्रदेश के लिए आखिरी में ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये लेबर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मैनेज लॉस, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और आप दूसरे नंबर के पॉइंट पर ध्यान देंगे कि 0 मैनेज लॉस है मध्य प्रदेश में। पिछले 1 डिकेड की बात करूँ, 2 डिकेड की बात करूँ, लगातार यही रहा है। We were the first state in entire country to implement labor case management system, so we are totally updated. और हमारी करीब 47% पॉपुलेशन पर वर्किंग एज कैटेगरी में है, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर वुमेन है। और आखिरी में मैं एक चीज़ को जरूर कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश इसके बाद भी ये समझता है कि हमारे लिए जो अगला संघर्ष है, जो हमारी पहल का अगला हिस्सा है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा करते रहते हैं। GIS में 30,77,000 करोड़ के इंटेंशन टू इन्वेस्ट है, लेकिन लगातार समीक्षा इस बात की होती है कि हम कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उसमें आगे जाएं, डीरेगुलेशन हम कैसे आगे करें, कैसे हम आपकी अनुमतियां कम कर सकें, कैसे आपकी अनुमतियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लेके आ सकें, कैसे उनको डीम्ड अप्रूवल के सिस्टम में ले आके रख सकें, और आपको जो हेरसमेंट या किसी तरह की कोई परेशानी हो, अपने पोर्टल को ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप एंड टू एंड पोर्टल के ऊपर वर्क करें। आप आए, आपका हमारे ऑफिस में, आपके हमारे घर में, हमारे दिल में, मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और हम चाहते हैं कि आप पोर्टल टू पोर्टल ही आप इंटरेक्ट करें, बात करें, लैंड अलॉटमेंट वहीं से कराएं, आपके डिफरेंट परमिशंस और अनुमतियाँ आप वहाँ से लें। आपको जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस का है वो DBT के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल MSME और गैर इकाइयों को मिलाकर 5200 करोड़ रुपये, 5200 करोड़, और बहुत सारे सवाल हम लोगों के सामने आए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग लिटरली अपडेटेड हैं, हमारी जितनी जिम्मेदारियाँ हैं, और जो कमिट करते हैं, जो कहते हैं, वो मध्य प्रदेश जरूर करेगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। लुधियाना आकर कभी हम लोगों को कई बार पहले भी आ चुका हूँ, लुधियाना आके कभी भी ऐसा नहीं लगता कि किसी नए शहर में आए हैं। इट हैज़ बीन दी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पंजाब, इट हैज़ बीन द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया,
तो बड़ी जबरदस्त शाम रही है। लोग बच्चे से तब से इसका नाम सुनते रहे हैं। ईश्वर की कृपा लुधियाना के ऊपर, पंजाब के ऊपर और मध्य प्रदेश और भारत के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। एक बार रिपीट कर दीजिए, थकना नहीं, रुकना नहीं। ये सर आपका जरा सा सपोर्ट होगा तो ना हम लोग थकेंगे ना रुकेंगे। धन्यवाद सर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी उद्बोधन के लिए श्री नीरज मंडलोई, एसीएस मुख्यमंत्री कार्यालय। आप सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। लुधियाना में आज हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके अनुरोध पर यहाँ उपस्थित उद्योग जगत के सभी साथीगण, I welcome the esteemed industry leaders, visionaries of enterprise and pioneers of progress. It is with immense pride and deep sense of purpose that I am welcoming you today, not just as guests but as potential partners in building a bold new chapter in India's growth story. You are the architects of innovation, the champions of transformation, and the driving force behind India's industrial strength. And today, I stand before you with a very open door and a compelling opportunity. Welcome to Madhya Pradesh, the heart of incredible India. आज हमें तीनों प्रकार के इन्वेस्टर्स मिले, कुछ जो मध्य प्रदेश में पहले से हैं या जिनका काम चल रहा है, कुछ जो सोच रहे हैं और कुछ ऐसे भी जो सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए आए हैं, लेकिन हमारी बातों के साथ उनको प्रोत्साहन मिला और उन्होंने रुचि दिखाई है। आज की इस बहुत ही छोटी संक्षिप्त यात्रा का यही प्रयोजन था कि मध्य प्रदेश की एक झलक आपको दिखाएं, हमारी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज, हमारा कमिटमेंट और हमारी डिलीवरी किस तरह से आपके डोर स्टेप पर आकर, आपके कदम से कदम मिलाकर आपके एंटरप्राइज को आगे बढ़ाती है। देश में पंजाब का नाम एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्क एपेटाइट के लिए जाना जाता है और मध्य प्रदेश इस एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्क एपेटाइट के लिए एक मैदान बन सकती है, बनने को तैयार है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। Strategically located at the center of the nation, Madhya Pradesh is more than just a state. It is a rising engine of economic dynamism with seamless connectivity, abundant natural resources, and a skilled and industrious workforce. And a government fully committed to the ease of doing business. We offer you not just land and infrastructure, but vision, stability, and a long-term partnership. In the past decade, Madhya Pradesh has undergone a silent revolution, from improved logistics to world-class industrial corridors, from a power surplus status to massive investment in clean energy, agri-tech, textiles, auto, defense, and beyond. And what sets us apart is not the potential, it is our readiness and our welcoming heart. We are ready with policies that support, with systems that enable, and with leadership that listens to you. We don't ask you to wait. We are here to ask you to act now. We are ready to the builders of India's future. And we say this, if you are looking for a place where ambition meets opportunity, where industry meets integrity, and where your legacy can take roots, look no further. Come to Madhya Pradesh. Let's build together. Let's grow together. Thank you for coming. धन्यवाद सर। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं आज हमारे साथ मौजूद कुछ बेहद प्रमुख उद्योगपति और उन्हें मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगी संबोधन के लिए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी श्री राजेंद्र गुप्ता जी, चेयरमैन ट्राइडेंट ग्रुप। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद।
चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी, ईस्ट मध्य प्रदेश, मेरे दोस्त, मेरे भाई पंजाब में आप सबका स्वागत है। आप आज पंजाब के मैनचेस्टर में आए हैं सर, जिसने बहुत ही योगदान दिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जरूरत थी, और ग्रीन रेवोल्यूशन में काम किया सर। जैसे कहा कि लुधियाना एक वो जगह है, पंजाब वो जगह है, यहाँ से बहुत उद्यमी आगे निकले और उन्होंने भारत में नहीं विदेशों में भी नाम कमाया। भारतीज, महिंद्रास, ओसवाल, मुंजाल्स, मित्तल, जैन, उन्होंने बहुत जगह यहाँ पे। और आपने सही कहा कि पंजाबियों के अगर हौसले बुलंद हैं, उनमें एक मादा है कहीं भी जाके काम करने का और अपनी कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने का, देश हो विदेश हो। मैं तहे दिल से आपका बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने यहाँ आके एक मौका दिया सबको दिखाने के लिए कि मध्य प्रदेश में क्या हो सकता है सर। अगर मैं अपनी बात कहूं, जो सहयोग, जो सहायता हमें मध्य प्रदेश से मिली, और पिछले 10 साल में हम मध्य प्रदेश से लगभग 100 देशों को निर्यात करते हैं और $1 बिलियन के करीब होम टैक्स का काम करते हैं। और मैं बड़े गौरव से कह सकता हूं कि पंजाब में काम करने के बाद और मध्य प्रदेश में काम करने के बाद मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मैं अलग स्टेट में हूँ। जितना प्यार, जितना स्नेह और जितनी, जैसे कहते थे, वो मिली, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने 5,000 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट की हमें वहाँ पे अप्रूवल मिली है, वो भी जल्दी शुरू करेंगे और अगले 3 साल में उसको पूरा करेंगे। और टेक्सटाइल पार्क के अंदर भी हम 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा एक मन है कि आप उज्जैन के पास एक ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें। वो एक ऐसा कार्य रहेगा जिसमें एक अलग किस्म की विद्या का एक मंदिर रहेगा। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि हमारे पंजाब में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मैं बड़े गर्व से और बड़े अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश से बढ़िया कोई स्टेट आज हिंदुस्तान में भी नहीं है। तो ये मेरा अपना अनुभव है इतने सालों का। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पूरा विजन है आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का, हम सब ने मिलकर बनाना है। हम सबकी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी किसी स्टेट की है, और हम भी उसी देश का उतना अखंड भाग है। पंजाब में रहें, पंजाब से बाहर रहें, और जितनी अपॉर्चुनिटीज मध्य प्रदेश के अंदर है वो एक अलग किस्म की अपॉर्चुनिटीज है, पंजाब में अलग किस्म की अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करना चाहे, मैं उसकी गारंटी दे सकता हूँ, इससे बढ़िया प्रदेश इस मुल्क में नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ सर, आपने हमें बहुत मौका दिया और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि सर यहाँ से बहुत उद्यमी आपके पास आएंगे और आपको हमें एक मौका देंगे सेवा करने का। Chief Minister and respected Mohan Yadav, the sir, respected Principal Secretary sir, all senior officials, distinguished guests, and all my fellow industries. It is with the immense pride and heartfelt warmth that I stand Madhya Pradesh state has witnessed remarkable progress from development, social welfare to innovation and transparency in the governance. Sir. On behalf of everyone here, I extend our
welcome to you, sir. Now something about us Unbracker Deepak Fasteners. That we are the largest industrial fasteners producers from India. We have presence, we have manufacturing facilities out of India also. We have in Ireland, we have in US, we have in UK. And we are in Bhopal from the last more than a decade. Sir, I can say that no plant can run successfully without the support of the government. And we, from the last 10 years, are having all possible help, all possible facilities from you. Because of that, we are able to grow in the last 10 years 4 times. In the next 3 years, we are coming with 1,000 crore more investment in only Bhopal, sir. And this is all because of the love from you guys. Thank you very much. We once again thank you again, the Vardi team, for visiting here Ludhiana, sir. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਾਂਗੀ ਮੰਚ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਓਸਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਹਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ओसवाल जी। लुधियाना में स्वागत मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश की शान, प्रगति की जान, नेतृत्व में आपके उद्योग ने पनपे, निवेश के द्वार खुले, हर दिल में बसे सपने। धरती मध्य प्रदेश की गर्व से सिर उठाए, मोहन जी की अगुवाई उज्जवल भविष्य लाए। Honorable CM Dr. Mohan Yadav ji and his entire team, it is my privilege and honor to welcome you today. Your leadership has transformed Madhya Pradesh into a hub of industrial progress, creating opportunity for youth and stability of the economy. Your efforts have led to remarkable milestone. At Global Summit 2025 in Bhopal, MOU worth 30,77,000 crores was signed, attracting national and international investors. Your government introduced a single window clearance for all the approvals. From my personal experience, I can say we signed a MOU worth 1,100 crores during the summit, and we had to do no extra efforts. We simply one day got the letter giving all the approvals. I would like to reiterate our commitment and say, and I am happy to announce that our third BOPP line plant has already been steps taken to start the plant. I can say, if Ludhiana is my Janambhumi, Madhya Pradesh is becoming my Karmbhumi. I urge all people to please look into the various incentives provided by the Madhya Pradesh policy and not to miss the chance to invest in MP. Once again, I welcome Dr. Mohan Yadav. Your presence here is today inspires us all, and we are grateful that you have taken time from your valuable schedule and taken time to visit Ludhiana. Thank you once again. धन्यवाद सर। और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री संजीव पावा, मैनेजिंग डायरेक्टर रॉल्सन ग्रुप। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री संजीव पावा जी का। Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji and dear members of the government, it's a great honor and a pleasure to welcome you here in our home state, our hometown, Ludhiana, the place where we roots and our family flourish in business. Sir, we started off in Ludhiana, manufacturer of bicycle tires, as this city is known for bicycles, and of course other two-wheeler plants. But when we decided to take the leap of faith and go to the larger heavy commercial vehicles, we very proudly and happily say that
MP was the first lecture. We are proud to have invested huge amount of sum in building India's one of the most truck and bus radial tire plants in Pithampur, Madhya Pradesh. सर, और मैं गर्व से कहता हूँ, भारत में दुनिया की सबसे अच्छी और एडवांस ट्रक टायर रेडियल फैक्ट्री हमने पीतमपुर में लगाई है और आगे भी नेक्स्ट फेज के लिए ऑलरेडी हमने तैयारी शुरू कर दी। हमारे को ये उत्साह आता है भारत की ताकत से और मध्य प्रदेश की सरकार और आपकी लीडरशिप और विजन से। सर, आपकी जो विजन है मध्य प्रदेश को $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाना, उसकी मैं सराहना करता हूं सर। इट इज वेरी बोल्ड, इट इज वेरी एम्बिशियस। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार सपना नहीं दिखाती और सपने को साकार करने के लिए जमीन पर काम कर रही है। ये हमने खुद महसूस किया है, एक बार नहीं बार बार। हमने जब मध्य प्रदेश के कल्चर को पहली बार देखा, क्योंकि जब हमने प्लांट की शुरुआत की थी तो कोरोना ठीक था और जिस प्रकार की सपोर्ट, जिस प्रकार का प्रोत्साहन हमारे को सरकार के द्वारा मिला, उसको की तुलना मैं समझता हूं कि नहीं कर सकते। आज हम अपने पीथमपुर प्लांट से USA, यूरोप और अन्य देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर, ये मैं बताना चाहूंगा आपको कि ग्लोबल टायर इंडस्ट्री आज $250 बिलियन के करीब है और इंडिया का अभी एक छोटा सा फ्रैक्शन है, तो बहुत काम हो सकता है। और हमारा ये इच्छा है, हमारी ये प्रयास है कि मध्य प्रदेश को एक लॉन्चिंग पैड बनाकर हम ग्लोबल मार्केट को टैप करें। Also, sir, the infrastructure, I would like to tell my friends here that the infrastructure in Madhya Pradesh is one of the best in India. The city that we are, Indore, is the cleanest city in India for the last at least 3 years. Sorry, I stand corrected. The last 7 years. And also, one of the wonderful infrastructure that we use is the tracks you were showing on the video here. That is the automobile test tracks. That is also there. It is quite close to our plant. That test track is one of the best testing facilities in whole of India. It's a 3,000-acre site, and sir, we have utilized that testing facility to benchmark and validate our products for the global markets. And I must say, all the people who are in automobile industry, for whom testing is an important part of their product development, I would request everyone consider Magtrax as a testing system. Sir, we export to over 90 countries, and every product that leaves our gates carries a simple message: made in India, made with pride, and made in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is our launch pad for the global markets. सर, आपके सहयोग से हमें आगे बढ़ने का उत्साह और आत्मविश्वास दिया है। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका, और मैं अपने फेलो इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर्स को ये बोलूँगा, if you are looking for a place where industry is respected, supported and celebrated, Madhya Pradesh is not just open for business, it's ready to lead. Thank you. धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने मंच पर आमंत्रित करती हूँ
श्रीमती सुचिता ओसवाल जैन, वाइस चेयरपर्सन वर्धमान ग्रुप, जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमती सुचिता ओसवाल जैन। Respected Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, accompanied senior bureaucrats of the government of Madhya Pradesh, other dignitaries sitting on the dais and in the audience, eminent industrialists of Punjab, ladies and gentlemen. It is indeed a great pleasure for me to welcome Dr. Mohan Yadav ji, who is a versatile personality, man of sharp business acumen and above all woven in simplicity and sensitivity. He has extensive experience in governance and well understands the aspirations of the people of the state and is working tirelessly to lift their living standards through faster and sustainable industrialization of the state. The state of Madhya Pradesh is an extended home to Vardhaman and has contributed immensely towards the growth of the Vardhaman Group. The group today has invested about 5,000 crores in Madhya Pradesh in a phased manner in about 20 years and has been employing about 10,000 people in the state. We have 3 plants in Madhya Pradesh located in Satlapur, Mandiri and Budni. Budni has one of the unique integrated plants from fiber to fabric. As a group, we always believe in the philosophy of humble beginnings and conservatism. We started by setting up a spinning mill in Madhya Pradesh in 1989. However, over the period of time, our confidence grew in the state and in the political leadership, and trust deepened in the state's bureaucracy and the congenial social economic environment of the state, which has been very supportive for doing business. The commitment of the political leadership of the state ensures a peaceful law and order situation and always available attitude at all levels of governance, which has greatly built our confidence. The bureaucracy is highly efficient and ensured all help in developing new industrial sites in the state for investors like us, which helped us to focus on our core business. The fairness of the political leadership and sound financial position of the state ensured the honoring of all commitments made to industry related to subsidies and incentives on time without any delay. The peace-loving workforce available in sufficient numbers in the state has ensured smooth running of operations. It needs special mention that a large number of female workers work in our factories and there is no shortage of female manpower. In our factories, we employ about 50% manpower, which comprises of female workers, and about 2,000 female workers stay in the company's hostel facilities which are provided by us. This has immensely helped in the women's empowerment through industrial employment, which became possible only with a proactive engagement of the government and the नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। पंजाब के लुधियाना में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया। Many complementary facilities. Punjab has strong MSME, skilled entrepreneurs, and a rich base of agro industries, textile and light engineering. Madhya Pradesh, with its policy initiative and incentives,
raw material base and low cost of the operations offers the ideal land space for expansion and diversification. There is a strong case for Punjab businesses to explore MP as their second base to serve both domestic and export markets more effectively. I would also call Punjab-based businesses to engage closely with the Madhya Pradesh delegate, Madhya Pradesh officers and the Chief Minister who understand the sectorial offerings and seriously evaluate the investment opportunity being presented here today. The incentives which the Madhya Pradesh government is offering at the moment, I think that is going to be the best in this India. PO stands ready to support the partnership. We will work closely with the MP government to facilitate the investment-linked export opportunities, policy advocacy and capacity building for new exporters setting up in this state. Let us join hands, Punjab and Madhya Pradesh, to build a new growth corridor for Make in India and export from India. Thank you very much. Jai Hind. धन्यवाद। और आइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के कार्यक्रम के सबसे मुख्य भाग अब मैं आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को, और आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और अब हम उनका उद्बोधन सुनेंगे, तो जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान चेयरमैन ट्राइडेंट ग्रुप श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी, श्रीमती सुचिता ओसवाल, वाइस चेयरमैन वर्धमान ग्रुप, श्री दिनेश ओसवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर नाहर ग्रुप, संजीव पहावा जी, रालसन ग्रुप चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान संजीव कालरा जी, श्रीमान लोकेश जैन जी, उपकार सिंह आहूजा जी, एससी दलहन जी, मेरे साथ मध्य प्रदेश से आए मेरे एससीएस और पीएस क्रमशः नीरज मंडलोर जी, राघवेंद्र सिंह जी, और इस अवसर पर आप सब सत श्री अकाल। और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, जय महाकाल। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे देश की गति, प्रगति और उन्नति हो रही है, हमें गर्व है। मैं ऐसी धरती पे हूं जिस धरती की एक अलग ही पहचान है। ये वीरों की धरती, महावीरों की धरती और दुश्मनों के दांत खट्टे करने वालों की धरती है पंजाब की धरती। हमारी गुरु परंपरा की अद्भुत धरती जो अपने मन के भाव से परस्पर आत्मीयता भी जोड़ती, खुश हो जाए तो प्राण दे दे, और दुश्मनी हो जाए तो जमीन में गाड़ दे। इस मामले में परमात्मा की दया, जिस भाव को लेकर के पंजाब ने अपनी पहचान बनाई। मैं आज के इस अवसर पर लुधियाना की उस धरती पे अपनी कोई बात करने के लिए खड़ा हूं जो मध्य प्रदेश के साथ जैसे हमारे नगरों की इंदौर की स्वच्छता की पहचान होगी, लेकिन उद्योगों की राजधानी मध्य प्रदेश के समान अगर ये पंजाब की बात करें तो ये पंजाब का लुधियाना शहर उद्योगों की राजधानी की तरह, ये भारत का मैनचेस्टर की तरह है। मेरी अपनी ओर से यहाँ के सभी उद्यमशील पुरुषार्थी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं लुधियाना का इतिहास देख रहा था। लुधियाना का इतिहास वैसे तो सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले प्रारंभ हो गया, बाद के काल में भी, हर काल में, हर समय 2000 साल पहले, 500 साल पहले, लोधी वंश में, अलग अलग समय में यहाँ के अपने उद्यमशील लोगों ने
अपने वस्त्र से, लघु उद्योग से, अपने इस पूरे देश तो ठीक है, ईरान और आगे तक भी कई सारी जगह तक अपने व्यापार व्यवसाय से पहचान बनाई। और अभी आजादी के बाद और साथ में तो 40 से 47 तक का दशक, कहा छोटी छोटी साइकिलों के कितने जबरदस्त रूप से काम करने वाले लोग मिले। A1 साइकिल और दूसरी कौन सी साइकिल, हीरो। क्या बात है, हीरो का विज्ञापन भी क्या आता था, लेकिन कोई एक बात नहीं, सभी क्षेत्रों में मैं मान के चलता हूँ। मध्य प्रदेश और खास करके पंजाब के संदर्भ में कहूँ तो ये सगे बिछड़े में भाई है दोनों एक तरह से। इनको मैं इस नाते से भी बधाई देता हूँ, क्योंकि एक तरफ पंजाब का गेहूं और एक तरफ मध्य प्रदेश का गेहूं, दोनों किसी से कम नहीं है। पंजाब बड़ा भाई है तो मध्य प्रदेश छोटा भाई है। हमको मिलकर के काम करने की आदत है। आज बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला, हमने सब, ये बात तो सही है, जैसे राजनीतिक दलों को छूटे नहीं कोई कहीं भी आकर के काम करे, अपनी पहचान बनाए। हमारे लिए भी तो छूटे है कि हम आपको आमंत्रित करें कि आप भी आपका व्यापार व्यवसाय बढ़ाएं, यहाँ भी काम करें, मध्य प्रदेश भी काम करे। सरकार आपको सब मदद करने के लिए तैयार है, किसी प्रकार से कोई कमी आने वाली नहीं। जब मैं दिल खोल के बात कर रहा हूं तो आपका भी दिल खोल के संदेश तो आना चाहिए। सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर मैं पॉलिसी पे बात नहीं करूंगा। पॉलिसियों पे बात करने के लिए हमारे सारे अधिकारियों ने बात कर ली कि हम किस किस प्रकार से कैसे कैसे मदद करेंगे, और उसी प्रकार से जो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और यहाँ भी काम कर रहे हैं, ऐसे नाम धन्य ऐसे सारे हमारे परिवार से जुड़े हुए उद्योगपति भी मंच पे बैठे हैं। और जैसे आपके साथ हम बैठ करके बात कर रहे हैं कि ये बात सही है, बदलते दौर में जब हम भारत को सिरमौर बनाना चाहते हैं, आज के दौर तो वो कैसा आकर्षक है। देखो, बड़े बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष छोटे छोटे मामले में रोज व्यापार की बात करते, कैसी बात करते आपको मालूम है। एक तरफ युद्ध की बात चलती और हाथों हाथ डील की बात नहीं चलती। ये नया दौर का समय आया, कभी आपने सुना था कि ऐसा कुछ होने वाला, लेकिन ये समय वास्तव में सजगता का भी और तत्परता का भी और इसी प्रकार से त्वरित गति से निर्णय लेने का भी। समय के साथ बदलते दौर में हमको कदम से कदम मिला के चलना। वैसे तो मैं उद्योगपतियों को ऐसा भी मान के चलता हूँ, उद्योगपति केवल अपने लिए इंडस्ट्री नहीं चलाता, आपके माध्यम से कई सारे लोगों का पेट पलता है, गरीबों की जिंदगी में उजाला आता है। इसलिए आपको बधाई देता हूँ, ये भी बहुत बड़ा पवित्र काम आपके माध्यम से होता है। ये एक तरह से हमारे उस पवित्रता के भाव को रेखांकित करता है, जिसके कारण से हमको लगता है कि ईश्वर ने हमको अगर जन्म दिया तो हमारे अपने जीवन में, हमारे जीवन यापन के माध्यम से हमारे परिवार का तो हम पालन पोषण करते ही है, लेकिन हमारे पालन पोषण के करते करते हमारे देश की आर्थिक समृद्धि भी आ, और परमात्मा ने हमको यश दिया तो हम अपने यश को भी हासिल करें और बदलते दौर में समय के साथ बदलते जाए। आप मित्रों एक बात जरूर देखना, अभी हमारे यहाँ ज्यादा पुरानी बात नहीं, केवल 300 साल के अंदर की बात। व्यापार करते करते इस देश ने गुलामी की जंजीर की दास्ता कब पहनी हमको मालूम नहीं पड़ा। ये वो धरती है जहाँ पर भगत सिंह खड़े हुए, जिसने अपने आप से इस देश को न केवल लोकतंत्र के लिए बल्कि आजादी के साथ साथ अपने बलिदान से एहसास कराया कि इस देश के लोगों को अगर कोई गुलाम रख सकता है तो गुलामी की मानसिकता के लिए उन्हें अपनी शहादत इतनी छोटी सी उम्र में दी, और ये भी मानते हुए कि वो चाहते तो वो अपने आप को अलग प्रकार से बचा सकते थे, लेकिन उन्हें अपने मित्र चंद्रशेखर आजाद सहित सभी क्रांतिकारियों से कहा था कि आज का समय बलिदान मांग रहा, और बलिदान मांग करके उन्हें एहसास कराया कि भारत आजादी मांग रहा और मुझे बलिदान देना पड़ेगा। मैं नमन करता हूँ भगत सिंह के उस वीर बलिदान को, जिसके कारण पूरा देश धन्य हुआ है, हमारी आजादी सौभाग्य मिली। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आज के बदलते दौर में मध्य प्रदेश से आपको बुलावा आया, मध्य प्रदेश आपको आमंत्रित कर रहा, एक घर मध्य प्रदेश में भी बनाना, एक यहाँ भी रखना, एक फैक्ट्री वहां भी लगाना है, एक काम यहाँ भी करना। अब ये बात तो सही है कि जब मैं आप में से देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने अतीत के काल के आधार पर पंजाब के अंदर एक मालवा भी है भी मालवा समय का मालवा याद दिलाते हैं, ऐसा कहते हैं। हो सकता है
थोड़ा बहुत आप भी इतिहास देखना कि जब सम्राट वीर विक्रमादित्य ने उस समय के अपने उस दौर में जब शकों का साम्राज्य आ गया तो शक हमारे देश के नहीं थे, वो दुनिया के पता नहीं किस हिस्से से आए थे, रोम के आगे से, और ऐसे में पूरे देश को उन्होंने गुलाम बना लिया और गुलाम बनाने के बाद इस देश में जैसे अपने आप पिछले समय के या दुनिया के कई देशों के हालात हम देख रहे हैं, ऐसे समय में वीर विक्रमादित्य ने अपने तलवार के बलबूते पर न केवल देश को आजाद कराया था बल्कि यहाँ भी पंजाब में मालवा और मध्य प्रदेश का मालवा मिलकर के पूरे देश में एक अलग प्रकार का आनंद और उत्साह का वातावरण दिया था। वो हजारों साल का हमारा इतिहास जिसके आधार पर हम और आप जुड़े हुए, मालवाले के पास मालवा होता और किसके पास होता है? मालवा का मतलब क्या है? मालवा नाम थोड़ी है, और मालवाले कहाँ है? या तो पंजाब में या मध्य प्रदेश में। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि नहीं, आज बदलते दौर में हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश के अंदर बात कर रहा हूँ तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप यहाँ भी अपना व्यापार व्यवसाय रखें, यहाँ पर भी काम धंधा करें, लेकिन काम धंधा बढ़ना भी तो चाहिए। ये जो अपने हाथ का यश है ये निरंतर फलता फूलता रहना चाहिए। इसलिए बड़ी संभावना मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के अंदर की संभावनाओं को लेकर के जैसे मैंने कहा कि हमारी सरकार ने एक संकल्प लिया, संकल्प में उसकी गुंजाइश ये थी कि अगर आप रोजगार पर एक इंडस्ट्री लगाते, मुझे नहीं मालूम और कहीं ये व्यवस्था है कि नहीं, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री डालते तो लेबर आपके यहाँ काम करे, फैक्ट्री आपकी है, प्रॉफिट आप कमाओ, लेकिन 5,000 रुपया प्रति लेबर भुगतान हम करेंगे ताकि हमारे अपने लोगों को रोजगार मिले। ये रोजगार पर इंडस्ट्रियों की दृष्टि से काम धंधे के आधार पर आपका चूंकि रोजगार पर इंडस्ट्री की अपनी कठिनाइयां भी होती, इसलिए उनके लिए मदद करना, तो जमीन, पानी, ब्याज, बिजली और बाकी चीजों में मदद करेंगे, लेकिन मजदूरों के लिए भी मदद करेंगे। और इसीलिए देश भर में से हम ये बुलावने निकले। अभी तो कोयम्बटूर से आए थे, कोयम्बटूर से बड़ी संख्या में रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्रियां हमारे यहाँ के काम कर रही। तो जब मैं लुधियाना में देखता हूँ तो सर्दी आने वाली, गर्मी लुधियाना ही लाता है, तो लुधियाना के अलावा गर्मी नहीं आती है। बड़े पैमाने पे हमारे लिए संभावना की जगह है। मुझे मालूम है बड़े बड़े नाम, हम भी घर में कभी स्वेटर पहनते तो ओसवाल का ऊन लाते थे, दूसरा तो हमको वहां मुश्किल ही जाता है। और ये एक से बढ़कर एक ग्रुप वाइडेंट बताओ, आप दुनिया में सबसे ज्यादा टाइल के लिए आपकी अपनी सेवा पंजाब के माध्यम से चलती, और ये जो अलग अलग प्रकार के आज हम लोगों से मिले तो अपनी फूड इंडस्ट्रियों को लेकर कितने प्रकार की संभावना, मैं आपको केवल 2-3 जानकारी देना चाहूंगा। हमारी सरकार ने जन हितैषी योजना और खास करके जिस क्षेत्र में हमारी कमजोरियां थी उस कमजोरियों में हमने आगे बढ़कर अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के बलबूते पर कई सारी योजना चालू की। जैसे स्कूल जाने वाला बच्चा, अगर स्कूल 6ठी और 9वीं के बाद वो स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर से दूर उसका घर है, तो हमने कहा बच्चा पैदल ले जाएगा, साइकिल हमारी सरकार की तरफ से दिलवाई जाएगी, लाखों साइकिल हम हर साल दें। ये इसके माध्यम से आपकी संभावना खोल रहे हैं, क्योंकि साइकिल हम दे रहे हैं तो साइकिल हम तो नहीं बना सकते, साइकिल तो आप ही को बनाना पड़ेगी। तो पंजाब की साइकिल मध्य प्रदेश में भी बन सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अभी अपने बीच में ऐसे बहुत सारी अलग अलग संभावना वाली इंडस्ट्रियां, मैं मान के चलता हूँ, खास करके आज जिस प्रकार का समय बदला, पिछली GIS में यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे भोपाल आए और भोपाल में आकर के जिस प्रकार से हमारे GIS का पूरा वक्तव्य में हमने प्रयास किया, वो उसी सिलसिले में भी हम आए। जब से हमारी सरकार बनी, हमने पूरे देश के अंदर भी, अपने प्रदेश में भी और दुनिया में भी हमारे मध्य प्रदेश की नीतियों को लेकर, उसकी अच्छी पॉलिसियों को लेकर खुलेआम सबके बीच बात करते हुए अधिकारियों को भी लेके जा रहे। लेकिन अधिकारी के साथ साथ मैं, वैसे मेरा डबल रोल भी, मैं अपने मध्य प्रदेश का उद्योग मंत्रालय का काम भी मेरे पास ही रखा है और मुख्यमंत्री भी मैं हूं, दोनों काम मेरे ही पास। ये आप सबसे सरलता से बात करने के लिए ही है, क्योंकि जब उद्योगपति से बात करते हैं तो उद्योगपति भी थोड़े बहुत, ऐसा तो है नहीं कि वो अपना उद्योग चलाते हैं, तो उनकी बुद्धि भी चलाते हैं। उनकी बुद्धि चलाने में उनकी मदद करने के लिए वो समझ जाते हैं कि बात किससे करना चाहिए और कैसी करना चाहिए। कोई भी व्यापार व्यवसाय के लिए निश्चित रूप से ये योग्यता भी चाहिए, ये टैलेंट भी चाहिए। हमें इस बात का गर्व है
हजारों साल से हमारी वो गौरवशाली परंपरा, जिसके बलबूते पर भारत सोने की चिड़िया के नाते से पहचाना जाता था। लेकिन आज बदलते समय में, आज आने वाले समय में, आज हम जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आप देखो केवल उदाहरण, तो मैं अगर राजनीतिक बात न करूं लेकिन थोड़ी सी तुलना जरूर करना चाहूंगा। 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी के समय देश की आर्थिक व्यवस्था विश्व के बाकी सारे देशों की तुलना में 15वें नंबर पे थी, 15 नंबर का हमारा अंक था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वहीं इजराइल भी तो हमारा 1 साल बाद आजाद हुआ था। आज इजराइल कहां से कहां चला गया। और कई सारे 42 में हमारा पूरा जापान, नागासाकी, हिरोशिमा के बाद उस जापान की हालत क्या हुई थी। लेकिन जापान उठ के खड़ा कहां हो गया। अभी हमारी आर्थिक व्यवस्था में 1-2-4 महीने बाद हम शायद उसको क्रॉस करें, लेकिन क्रॉस करने में कितने साल लगते, वो दोबारा उस दौर में पहुंच गया। तो आज का समय भी अपना देश तो पुरुषार्थों का है, ये तो हमारी गुरु परंपरा के आधार पर वीरों महावीरों की धरती है। तो आज बदलते दौर में 2014 में हमारे देश की 11 नंबर की आर्थिक व्यवस्था में नंबर था, लेकिन आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था से हम तीसरी तरफ जा रहा है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। इतनी कम समय में 11 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता, लेकिन 11 साल से भी कम समय में जिस प्रकार से इस देश के अंदर आर्थिक तंत्र पूरा बदला है, जिस प्रकार से व्यापार व्यवसाय की संभावना बढ़ी और देश के नेता कैसे होना चाहिए, जो आंख में आंख डाल करके हमारे लिए रूस का भी वही महत्व, जो अमेरिका का, हमारे लिए चाइना के लिए भी वो हिसाब रखने में अपना देश का नेतृत्व, देश के नागरिकों के लिए, देश की भविष्य की योजनाओं के लिए जिस प्रकार से काम कर रहा है, इससे बढ़कर कोई समय नहीं। तो आइए हम सब आगे बढ़े, क्योंकि आप आपके लिए नहीं कर रहे हैं, आप आपके साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं, इस देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ पंजाब की उन्नति के लिए मैं केवल निमंत्रण देने आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सत्र हमारे उसी भाव का रहेगा। जैसे मैंने कहा, मैं कोयम्बटूर, बेंगलोर, सूरत और देश के कई सारे राज्यों में, इसी प्रकार से विदेश में भी, और हमने हर महीने हर बार अपने यहाँ इसी प्रकार की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए और ये राज्य के बाहर रोड शो करते हुए हमारी बात सबके बीच रखते जा रहा है। और उसका परिणाम निकला कि बीते फरवरी में हमने लगभग 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पूरे देश से आमंत्रित किया। और मध्य प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये पहली बार आया और हम उससे थके और रुके नहीं। ये हमने पहले कॉमन रूप से किया था, फिर अलग अलग सेक्टर वाइज, हर सेक्टर में बड़ी संभावना। जैसे मुझे नहीं मालूम यहाँ साइकिल इंडस्ट्री तो है, लेकिन लोहे की कोई खदानें हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है यहाँ पे खदानें, स्क्रैप से शायद काम चलता था पहले, ऐसा या जो भी बाहर से लाना पड़ता होगा। लेकिन हमारे तो स्टील आप प्लांट लगाए, हमारे यहाँ अभी बीच में हमने शहडोल में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। शहडोल के अंदर 2 कारखाने 3.5 हजार करोड़ के, जो अपने आप में इसी प्रकार से सिंगरौली, सतना, रीवा और केवल पूरा माइनिंग के अंदर जितनी संभावना मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश देश का वो एकमात्र राज्य है जिसकी जमीन में हीरा भी मिलता है और सोने की खदान भी मध्य प्रदेश के अंदर है। मैं तो केवल आपको आमंत्रित दे रहा हूं कि आप सब आइए, जिस भी प्रकार की कोयला भी रहे तो पानी की पर्याप्तता के आधार पर बिजली सभी प्रकार से बनाने की संभावना, निवेश के सभी सेक्टर में कोई सेक्टर ऐसा बाकी नहीं जहां बड़ी संभावना नहीं। मैं मान के चलता हूं कि जब आप निवेशकों से बात करते हो तो आपको भी इस बात की ध्यान में आई रही है। और जिस प्रकार से मुझे आज रिस्पांस मिला, सच मानो इतनी जगह गया लेकिन लुधियाना में जो प्यार मिला है वाकई मुझे अभिभूत कर दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और जीवन भर ये प्यार नहीं भूलेंगे। आइए हम सब मिलकर के भारत माता की सेवा में इसी प्रकार से लगातार बढ़ते रहे। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आग्रह करती हूँ पंजाब के प्रमुख एसोसिएशन जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी AEPC के प्रतिनिधि श्री हरीश दुआ जी कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें।
और उनके साथ मैं इनवाइट करती हूं फिको से श्री गुरमीत सिंह कुलार जी, CICU से श्री उपकार सिंह आहूजा, JITO से श्री भूषण जैन और FIO से श्री SC राल्हा। कैमरा टीचर खोलो, कैमरा टीचर खोलो। अरे कैमरा नहीं। पंजाब के प्रमुख एसोसिएशंस के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिवादन